we discussed in class the linked list. There are different types of linked list. The one and the simplest form of the linked list is the linear linked list or singly linked list. अब linked list क्या है? It is comprised of the nodes. Now we will learn to implement the linked list in C programming language. Now first, for implementing the linked list, we need to know how to implement a node in a linked list, because a linked list is comprised of nodes. Now a node, you know, there are two parts in the node. One is the data. There may be multiple data parts, but in the simple linked list, we can have one data part and the other one is the link to the next node. क्योंकि you know कि linked list में क्या होता है कि हर node जो है उसके पास there is the address of the next node, because we do not have the direct way to access the nodes of linked list. So it is important to have some way to access the nodes of linked list. Unlike the array, the linked list is not stored on the consecutive memory locations. The nodes of the linked list are spread in different locations in the memory. As you know, it is a dynamic structure, because whenever we need the node or to have the data, whenever we have the new data, we can have a node or we can get the memory for that node. So first of all, we will learn how to implement, how to create a node for the linked list. Now, when you are familiar with the structure, you can see here the structure. Structure is a user-defined data type in which we can define the data type by our own wish. यानी कि अपनी मर्जी से जो भी उसमें देना चाहें, and it is comprised of multiple data items. It depends on us कि क्या हम उसमें रखना चाह रहे हैं. तो नोड you know कि जो लिंक लिस्ट का नोड होता है उसमें हमारे पास मिनिमम एक तो डेटा पार्ट है, ठीक है, जिसको यहाँ पे नंबर से रेफरेंस किया गया है, यहाँ पे इसको नंबर कहा गया है, ठीक है, तो वो डेटा पार्ट है. मिनिमम ये एक होता है, लेकिन उसके अलावा there can be multiple data parts like the name. If we are implementing the linked list for the records of the students, then we can have multiple data parts as well, like the roll number of the student, name of the student, father's name, and so on. And another important part of the structure for the link node implementation is the pointer to the next node. अब वो जरूरी है, ठीक है. अब यहाँ पे जितने भी होने चाहिए डेटा आइटम, it depends on our requirement, पर यहाँ पे जो आखिरी या एक important जो पार्ट होगा वो क्या होगा? It is the pointer to the next node. तो वो important जो है पॉइंट जरूर होगा वहां पे, ठीक है. Then how do we proceed? अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि we have to create the node, ठीक है. अब उसके लिए हमने उसको नाम दिया है, क्योंकि वो नोड किसका है? लिंक लिस्ट का. तो हमने उसका जो जर्नल नेम क्या दे दिया है? struct linked list and then the data part of the linked list. अब यहाँ पे we have the linked list of the numbers, right?
So here it is the number. Then we have the pointer to the next node. ठीक है, just यहाँ पे simple linked list है for the two item, one data part, second one is the next pointer. अगर आप implement करना चाह रहे हो, multiple data items देना चाह रहे हो, तो you can do it like here कि यहाँ पे number int number, उसके बाद next जो भी आप देना चाह रहे हो, तो वो 4 5 6 7 8 मतलब कुछ भी आप दे सकते हो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, इसमें उसका जो सिंटैक्स है कि वही कीवर्ड है स्ट्रक्ट, देन देयर इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि उस नोड के लिए या उस लिंक लिस्ट के लिए हम जो भी नेम देना चाहें वो यहाँ पे नेम देंगे, देन देयर इज अ कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या आएंगे, देयर विल बी द आइटम, डेटा आइटम्स, ठीक है, एंड देन there will be the pointer to the next node, क्योंकि node किसका है, किस टाइप का है, लिंक लिस्ट टाइप का है, ठीक है। तो इस वजह से the type of the next pointer will be the struct linked list, यानी कि किसको हम पॉइंट कर रहे हैं, किसका पॉइंटर है, तो वो इसका है, तो इस वजह से we'll do it like this. Then यहाँ पे हमने इसको क्या किया है कि नोड को हमने रीडिफाइन किया है, रीडिफाइन यानी कि रीनेम किया है, वी कैन से लाइक दिस, टाइप देव स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट नोड, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि टाइप देव जो कीवर्ड है उससे हम क्या करते हैं, वी रीनेम अ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट को हमने क्या किया है कि इसको जनरलाइज हमने नाम दिया लिंक लिस्ट, फिर हमने स्पेसिफिक नोड्स के लिए हमने उनको क्या किया कि उसको रीनेम किया नोड के साथ। देन यू नो कि एवरी लिंक लिस्ट हैज अ स्टार्ट नोड। इनिशियली क्या होता है कि हर लिंक लिस्ट में जो है वो होता है, एक स्टार्ट नोड होता है which is in the beginning it is null, ठीक है। बिगिनिंग यानी कि जब लिंक लिस्ट अभी क्रिएट ही नहीं हुई, there are no items into the linked list, so there is null। इसके अलावा हम अपनी आसानी के लिए एक और नोड भी क्रिएट कर रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, लास्ट नोड, यानी कि अगर हम लिंक लिस्ट को एक्सेस करना चाहें फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट तो भी हम कर सकें। अब जब when linked list is empty then the last node is also null, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये क्या है, लास्ट, ये क्या कर रहा है, it gives the address of the last node। अब वो मेमोरी में कहाँ पे मिलेगी, जो भी मिलेगी एड्रेस, that is it, ठीक है। तो जहाँ पे भी उसको मिले, एट द मोमेंट इनिशियली जब लिंक लिस्ट क्रिएट हो रही है तो उस टाइम पे यहाँ पे जो है वो है कि नल है, ठीक है, लास्ट नोड भी नल है, स्टार्ट भी नल है। देन फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी algorithm we have separate functions, so function declarations are here or we can say कि function prototypes are here, ठीक है। जो जो function, क्योंकि हर काम you know कि algorithms are the way to perform operations on the data structures, ठीक है। कौन से ऑपरेशन पे, इंसर्शन है, डिलीशन है, या जो है वो सर्च एंड आइटम है, तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं ऑन डेटा आइटम, या ट्रैवर्सल है, ये क्या है, डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। तो हाउ डू वी परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटा स्ट्रक्चर, वी परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटा स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ algorithms. So here for implementing the algorithms we have separate functions for each of the algorithm. सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है, what is that, it is create the linked list, ठीक है। अब उसकी definition is given below in the code.
सेकेंड फंक्शन है प्रिंट द लिंक लिस्ट। प्रिंट लिंक लिस्ट लाइक द ट्रैवर्सल, ठीक है। जिस तरह ट्रैवर्सल है तो उसमें हम क्या करते हैं कि भाई उसकी सिंपली अगर प्रिंट करें तो भी हमारी ट्रैवर्सल हो जाएगी, क्योंकि वी हैव टू एक्सेस एवरी एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट। देन we have to insert a new node in the last, ठीक है। ये एल्गोरिथम क्या करेगी, या फंक्शन क्या करेगा, न्यू नोड कहाँ पे, इन द लास्ट और एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। उसके बाद क्या है, इंसर्ट एट द फर्स्ट। अब ये सारी एल्गोरिथम वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, सो हियर वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग देम एज अ प्रोग्राम। उसके अलावा इंसर्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर की या आफ्टर अ पर्टिकुलर डेटा आइटम, यानी कि कोई डेटा आइटम इसमें मौजूद होगा, उसके बाद हम न्यू नोड इंसर्ट करेंगे, यानी कि हम उसकी वैल्यू डालेंगे। ये हमसे एल्गोरिथम क्या करेगी, उस डेटा आइटम की वैल्यू इनपुट लेगा और उस डेटा आइटम के बाद जो है हमारी न्यू वैल्यू इंसर्ट होगी, ठीक है। देन डिलीट आइटम, ठीक है। आइटम को, पर्टिकुलर आइटम जो है वो डिलीट करना है, तो वो कैसे करना है वो हम यहाँ पे कैसे बता रहे हैं, विथ द वैल्यू ऑफ द आइटम, यानी कि आइटम की वैल्यू हम बता रहे हैं, उससे उसको डिलीट करें, राइट। So these are the prototypes of the functions that are implemented in this linked list. So here is our main program, which starts with main function. So here are some variables that will be used. So first of all, when this program is executed, यानी कि जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या करेगा, लिंक लिस्ट क्रिएट करेगा। यानी कि अगर हम उसको वैल्यू देंगे, पहली वैल्यू देंगे, तो वो उसका पहला नोड उसको क्रिएट होगा, अदरवाइज जो है वो नल होगा, यानी कि फर्दर वो प्रोसीड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट क्रिएट हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए फंक्शन हमारे पास होंगे। अब क्रिएट करना यानी कि पहला नोड करना, इंसर्ट इनटू द लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले क्या है कि जैसा कि मैंने आपको फंक्शंस आपको बताए थे, तो सबके लिए हमारे पास ऑप्शन है। वन से क्या होगा, इंसर्ट न्यू आइटम एट द लास्ट। टू से क्या होगा, इंसर्ट न्यू आइटम एट द फर्स्ट। तो यू कैन सी दीज ऑप्शंस, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो कहाँ पे होगा, चॉइस वेरिएबल में जाके होगा। जो भी हम इनपुट देंगे तो वो चॉइस वेरिएबल में जाएगा। और जैसे अगर हमें कुछ भी नहीं करना, एग्जिट करना है, तो फॉर दिस आवर चॉइस शुड बी 7, राइट। अच्छा, फिर सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले अगर 1 हम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, 1 के लिए क्या है कि भाई इंसर्ट अ न्यू आइटम एट लास्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो है फंक्शन चलेगा, इंसर्ट एट लास्ट वाला जो है वो फंक्शन चलेगा। और चाहे तो हम उसको इंसर्ट करने के बाद उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे उस फंक्शन को भी चलाया गया है। एंड देन ब्रेक। उसके बाद सेकंड चॉइस हमारी क्या है कि इंसर्ट वैल्यू एट फर्स्ट पोजीशन टू एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि पहले तो ये क्या कर रहा है, नॉर्मली जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट इंसर्ट करता जाए। फिर स्पेशल केस है कि वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू आइटम एट द फर्स्ट पोजीशन। अब उसकी जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगी, जो भी उसकी तरीकेकार है, जो कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, इट विल बी डन इन द सेम वे, ठीक है। अब ये है कि वो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है और उसका जो इनपुट हमें देना होगा क्या होगा कि जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं दैट विल बी द इनपुट टू दैट फंक्शन। उसके बाद अगेन लिस्ट को प्रिंट कर रहा है, यानी कि हर ऑपरेशन करने के बाद वी आर प्रिंटिंग द
लिस्ट। उसके बाद थर्ड हमारा जो है वो क्या है कि इंसर्ट वैल्यू आफ्टर अ डिफाइंड वैल्यू टू एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, यानी कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसमें मौजूद होगी, ठीक है, उसके बाद हम न्यू वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो वैल्यू भी हमें बतानी होगी और न्यू वैल्यू जो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो भी हम बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो है इंटर आइटम टू सर्च। सर्च हम बताएंगे कि भाई क्या हम लिस्ट में सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो हमें बताएगा कि भाई आइटम है नहीं है या कहाँ पे। देन डिलीशन का फंक्शन है कि भाई जो आइटम हमें हम देंगे, जो वैल्यू हम देंगे उसको डिलीट करेगा, और डिलीट करने के बाद जो हमारे पास जो लिस्ट है वो हमें शो करेगा, ठीक है। उसके अलावा तो ये डिफरेंट फंक्शन है। उसके अलावा डिस्प्ले, ठीक है, लिस्ट को डिस्प्ले करें, यानी कि सिंपल जो ट्रेवर्सल का काम है वो इस सिक्स्थ ऑप्शन के साथ होगा। उसके अलावा और जो 7 है वो है किसके लिए, एग्जिट करने के लिए। बाकी उसके लिए अलावा हम जो भी करेंगे तो वो क्या कहेगा, इनवैलिड चॉइस। नाउ सी के हमारे इंडिविजुअल फंक्शंस जो हैं वो हर एक फंक्शन हमारा आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखें कि इसको हम चला के देखते हैं, फिर हम फंक्शन के बाद आते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला, क्योंकि मेन में हमने क्या कहा था, मेन फंक्शन में हमने क्या कहा कि जैसे ही एग्जीक्यूट हो तो सबसे पहले क्या करें, लिस्ट क्रिएट हो यानी कि उसकी हम वैल्यू दें। अगर हम नहीं देना चाह रहे तो हम क्या करेंगे, सिंपली -1 दे दें। अगर -1 नहीं दे रहे, कोई और वैल्यू दे रहे हैं, तो वो क्या होगी, लिंक लिस्ट में जाके स्टोर होगी। अब कोई भी हम वैल्यू देना चाह रहे हैं, सपोज करें कि हम 65 वैल्यू दी, ठीक है, और एंटर किया, ठीक है। अगर हम दूसरी कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं, दे दे 99, ठीक है, तो ये हमने वैल्यू दी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई फर्दर हम कोई वैल्यू नहीं देना चाह रहे, हमने दो वैल्यूज दी, एक 65 और दूसरी 99, यानी कि पहली वैल्यू 65 और दूसरी वैल्यू 99, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो लिस्ट है, पहली वैल्यू क्या आ गई 65 और दूसरी वैल्यू क्या है 99, राइट। अभी भी हमारे पास ऑप्शंस है, अब हम ऑप्शंस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है, अगर ऑप्शन 1 है तो भी क्या करेगा, इंसर्ट इन द एंड, ठीक है, 1 हमने दिया। अब क्या वैल्यू दे, फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं 77, तो सिंपली क्या किया, 77 को लिस्ट के एंड में इंसर्ट कर दिया। नाउ व्हाट द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव कि इंसर्ट न्यू आइटम एट द बिगिनिंग, ठीक है। न्यू आइटम हम कहाँ पे जा रहे हैं, बिगिनिंग पे, यानी कि 65 से भी पहले आए। तो उसके लिए हम पहले चॉइस इंटर करेंगे, टू इंटर वैल्यू, जो भी वैल्यू है, जो भी हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो वैल्यू है वो है 100, ठीक है, एंटर किया, तो यू कैन सी वी हैव इंसर्टेड 100 एट द फर्स्ट लोकेशन, राइट। देन एंटर किसके लिए है कि वैल्यू हमें किसी पर्टिकुलर नोड के बाद इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो जो है उसके लिए हमारे पास क्या है, थर्ड ऑप्शन है, उसे क्या करेगा, पर्टिकुलर वैल्यू हम बताएंगे, उसके बाद वो नोड वैल्यू इंसर्ट होगी। अब सबसे पहले ये क्या कह रहा है, इंसर्ट वैल्यू आफ्टर व्हिच टू इंसर्ट न्यू आइटम। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है लिस्ट में, 100 है, 65 है, 99 है, 77 है। सपोज वी वांट टू इंसर्ट द न्यू वैल्यू आफ्टर 99, ठीक है, तो हमने ये बताया। अब न्यू वैल्यू हम जो इंसर्ट करने जा रहे हैं
वो क्या है 33। ठीक है, अब देखिए 33 हैज बीन इंसर्टेड आफ्टर 99। फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है कि इट इज द क्या है, एंटर एन आइटम टू सर्च इट फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में हम आइटम सर्च करें, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 4, राइट। तो 4 हम यहाँ पे करें। अब आइटम सर्च करना है, सपोज करें कि हम क्या कर रहे हैं 99। अब ये इसने हमें बताया 99 इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, इट्स मेमोरी एड्रेस इज लाइक दिस। अब जिस मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर्ड है वो ये है। ठीक है, सपोज करें कि हम जो है वो दूसरा आइटम भी करते हैं, तो अब पता नहीं कि दूसरा आइटम उसके करीब है या दूर है, मे बी उसके करीब भी उसको मेमोरी मिल गई हो। ठीक है, अब हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 99 की हमने एड्रेस देखी थी, अब हम 33 की देखें कि क्या 33 कहाँ पे, मे बी उसके साइड में भी हो, तो कुछ भी हम नहीं कह सकते, मे बी उसकी करीब हो, मे बी जो है वो कहीं दूर भी हो। तो हम अगर देखना चाहें तो ये भी हम देख सकते हैं। सपोज करें कि 4, ठीक है, अब हम 99 हमने चेक किया था, अब हम किसको करें 33 को। अब 33 अब देखिए कि ये जो है, देखिए कि इसकी मेमोरी क्या है 4300408752। ठीक है, अब ये क्या है 43015। देखिए कितना डिफरेंस है, हालांकि लिस्ट में यू कैन सी कि वो एक साथ आ रहे हैं, पर मेमोरी में पता नहीं क्या है, क्योंकि रन टाइम में उसको मेमोरी मिल रही है, कहीं पे भी उसको मिल सकती है। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि लिंक लिस्ट इज टोटली डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, मींस के जो आइटम्स हैं वो कहाँ पे है, कोई आइटम कहाँ पे, हालांकि जब हम उसको एक्सेस कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली हमें उसके साथ हमें दे रहा है, एडजसेंट लोकेशन में दे रहा है, क्योंकि देखिए 99 और 33 था ना, तो अगर हम उसको डिस्प्ले करें तो वो क्या है कि भाई 33 बिल्कुल 99 के बाद आ रहा है, पर हमने यहाँ पे देखा कि उन दोनों की मेमोरी में कितना डिफरेंस है। तो यही लिंक लिस्ट का एक जो वर्सटिलिटी है कि भाई उसकी खास बात ये है कि हम डेटा हमारी चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन हम उनको एक्सेस आसानी से इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारा क्या है कि एंटर अ वैल्यू विच यू वांट टू डिलीट फ्रॉम। अब क्या है कि डिलीशन की एल्गोरिथम। ठीक है, कोई भी आइटम हम डिलीट करें, फॉर एग्जांपल 65 हम डिलीट करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिलीशन के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है 5 है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन हमने किया। अब कह रहा है कि भाई जो आइटम हम डिलीट करने जा रहे हैं वो हम डिलीट करें। सपोज करें कि 65 हम डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 65 इज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, राइट। अगर हम कोई और आइटम दें फॉर डिलीशन, तो उसके लिए हमारे पास क्या है ऑप्शन 5, और सपोज करें कि हम 88 डिलीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि 88 लिस्ट में था ही नहीं, उसने क्या किया कि भाई आइटम नॉट फाउंड, लिस्ट में है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जो लिस्ट जैसे पहले थी वैसे ही डिलीशन से पहले लिस्ट, आफ्टर डिलीशन जो है वो हमारे पास वही है जो कि लिस्ट पहले थी। लिस्ट बिफोर डिलीशन, यू कैन सी योर लिंक लिस्ट इज बिफोर डिलीशन ये है, और आफ्टर डिलीशन भी ये है, बिकॉज द लिस्ट दैट आइटम वाज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अगर प्रेजेंट होता, फॉर एग्जांपल 100 अगर हम डिलीट करें, अगर हम 100 डिलीट करें
तो क्या होगा कि योर लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन 100, 99, 33, 77 और आफ्टर डिलीशन हमारे पास क्या है 99, 33, 77 यानी कि 100 हैज बीन deleted. So this is how the different algorithms of the linked list are working here. ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब दो एक फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे हमारे हमने एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें क्रिएट लिंक लिस्ट। अब क्रिएट लिंक लिस्ट सबसे पहले क्या कर रहा है, क्योंकि क्रिएट का मकसद है कि भाई सबसे पहला आइटम उसमें इंसर्ट करे। तो इंसर्ट क्रिएट करने के दौरान क्या कर रहा है कि उसको उसमें वही फंक्शन चला रहा है जो कि इंसर्ट एट लास्ट, यानी कि उसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि क्रिएशन के टाइम पे स्टार्ट नल है। ठीक है, उसमें हम न्यू आइटम इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सेपरेट एल्गोरिथम की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यू आइटम हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएट करने के लिए, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए ये एल्गोरिथम चल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट लास्ट वाला किसको कॉल कर रहा है फंक्शन, और सॉरी क्रिएट लिंक लिस्ट वाला किसको कर रहा है, इंसर्ट एट लास्ट। ठीक है, अब उस एल्गोरिथम में हम आते हैं। जैसा कि हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम जो नोड सबसे पहले क्रिएट हम करते थे, क्या तरीकेकार होता था, आपको याद होगा कि हम न्यू नोड क्रिएट करते थे। ठीक है, यानी कि मेमोरी से हम न्यू नोड लेते थे अवेल लिस्ट से। ठीक है, तो उसका नेम हमने दिया टेम्पररी नोड। ठीक है, उसका हमने नेम क्या दिया, टेम्पररी नोड, क्योंकि न्यू कीवर्ड है तो वो हम ये यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे जो न्यू नोड हम क्रिएट कर रहे हैं उसका हमने नाम दिया है टेम्प नोड। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो नोड क्रिएट करना होगा। देन यू नो के मेमोरी उसके लिए रिजर्व्ड नहीं है, क्योंकि हम रन टाइम पे मेमोरी उसकी लेते हैं। तो ये फंक्शन एम अलोक यानी कि मेमोरी एलोकेशन फंक्शन जो है वो यूज होता है उसको, उसके लिए मेमोरी लेने के लिए। ठीक है, वो फंक्शन यूज होता है, तो वो इस तरह से होगा, यानी कि टेम्प नोड इक्वल्स टू जो है ये नोड की जो भी लिंक लिस्ट का नोड है उसकी यहाँ पे कास्टिंग हो रही है, और यहाँ पे कितनी साइज उसको चाहिए, कितनी नोड की साइज ऑफ क्या है, एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके मुताबिक उसको मेमोरी असाइन की जा रही है। ठीक है, तो उसके मुताबिक उसको मेमोरी असाइन की जाएगी, यानी कि न्यू नोड जो हम क्रिएट करते हैं ना, अवेल से लेते हैं, तो वो यही तरीके का है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि वी हैव टू असाइन द वैल्यू। जैसा कि हम डेटा न्यू में हम वैल्यू डाल रहे थे, तो ये वो स्टेप है। ठीक है, देन ये क्या कर रहा है कि ये एल्गोरिथम क्या है वैसे कि इंसर्ट द न्यू नोड एट द लास्ट, यानी कि अब जो न्यू नोड अगर लास्ट में हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका जो है नेक्स्ट पॉइंटर है वो क्या होगा, नल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो नल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्प न्यू यानी कि न्यू नोड उसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, नल है, क्योंकि हम ये न्यू नोड कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, एट द एंड। अच्छा, अब हम ये एज अ फर्स्ट नोड यानी कि न्यू लिस्ट को क्रिएट करने के लिए भी यही एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टार्ट है वो अभी तक नल है। जब ये फंक्शन हम चलाएंगे ना, ये जो पहला फंक्शन चल रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा स्टार्ट नल है, तो इसके लिए कंडीशन चेक की जा रही है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। जब इनिशियली ये चलेगा तो ये कंडीशन क्यों होगी, ट्रू होगी कि भाई स्टार्ट इज इक्वल टू नल, यस स्टार्ट नल होगा, तो क्या होगा कि भाई स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प नोड,
यानी कि न्यू नोड जो हमने क्रिएट किया है वो अब स्टार्टिंग नोड है, और लास्ट इज इक्वल टू टेम्प नोड, क्योंकि ये पहला ही नोड है, ये पहला ही नोड है, तो पहला नोड भी जो है वो न्यू नोड होगा, और लास्ट नोड भी वही नोड होगा अगर स्टार्ट इक्वल्स टू नल है। अदरवाइज क्या होगा कि लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प, यानी कि लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। तो इससे क्या होगा कि लास्ट नोड जो है वो जो न्यू नोड है वो लास्ट नोड होगा, यानी कि अगर इसमें हमारे पास पहले से कुछ नोड मौजूद हैं तो स्टार्ट को हम कुछ नहीं कर रहे, हम जो न्यू नोड हमने इंसर्ट किया है उसको हम कह रहे हैं कि भाई वो लास्ट नोड है, और यहाँ पे इसको हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट नेक्स्ट जो है वो टेम्प नोड, यानी कि पहला जो लास्ट नोड था उसकी नेक्स्ट पॉइंटर हम किसको दे रहे हैं, टेम्प नोड को, और लास्ट किसको कर रहे हैं, जो न्यू नोड हमने इंसर्ट किया है। तो दिस इज हाउ वी इंसर्ट अ न्यू नोड एट द एंड। सेम एल्गोरिथम हमें पास यूज होगी अगर लिस्ट खाली है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि फर्स्ट उसमें नोड इंसर्ट हो रहा है, यानी कि लिस्ट क्रिएट हो रही है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि स्टार्ट नल होगा। अदरवाइज क्या होगा कि हमारा ये स्टेप परफॉर्म होगा। तो आई होप कि ये एल्गोरिथम आपको बिल्कुल क्लियर होगी। उसी तरह हमने किया है जिस तरह हमने इसकी इलस्ट्रेशन की थी क्लास में, ठीक है। तो उसी तरह हम इसको कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसकी इलस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको दे भी सकती हूँ कि यहाँ पे एक इसको हम करें सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हम इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका हम डायग्राम इस तरह से हम बनाए, ठीक है, कि किस तरह से हम कर रहे होते हैं। तो ये मैं उसके लिए अलग से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। अब आप देखिए ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने आपको नजर आ रही होगी, जिसमें हम न्यू नोड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सपोज करें कि इनिशियली हमारे पास क्या है कि स्टार्ट क्या है, स्टार्ट नल है, ठीक है, स्टार्ट नोड है, क्योंकि लिस्ट में हमारे पास कोई आइटम मौजूद नहीं है। तो स्टार्ट भी नल है तो लास्ट भी नल है, ठीक है, क्योंकि कोई आइटम हमारे पास उसमें मौजूद नहीं है। लास्ट भी हमारे पास नल है, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो हमारी थी कि न्यू नोड हमने क्रिएट किया, सबसे पहले हमने न्यू नोड क्रिएट किया, उसमें हमने जो भी डेटा डालनी थी वो डेटा डाली, सपोज करें कि 2 हमने वैल्यूज में डाली। फिर हमें क्या करना है कि लास्ट जो है वो अलग से पॉइंटर है, हमें क्या करना था, पहला ही नोड है ना, तो क्या होगा कि भाई स्टार्ट को भी उसकी एड्रेस होनी चाहिए और लास्ट के पास भी उसी की एड्रेस होना चाहिए अगर ये पहला नोड है, ठीक है। तो ये होगा अगर न्यू नोड पहला नोड है। अगर न्यू नोड पहला नोड नहीं है, कोई और नोड है, यानी कि उससे पहले हमारे पास और भी कुछ नोड्स मौजूद हैं, तो क्या है कि इनिशियली हमारे पास क्या होगा, सॉरी, कि ये लिस्ट हमारे पास इस तरह से मौजूद है, यानी कि उसमें एक आइटम मौजूद है, ठीक है। हम न्यू आइटम ऐड करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि न्यू आइटम हम इस तरह से ऐड करेंगे, यानी कि टेम्प नोड हम उसको लेंगे, फिर हम क्या करेंगे,
हमें क्या करना होगा कि इसका स्टार्ट को हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि लिस्ट के एंड में हमें न्यू आइटम इंसर्ट करना है। तो क्या होगा कि सिंपली न्यू नोड हमने क्रिएट किया, उसमें जो भी डेटा हमें डालनी है, फॉर एग्जांपल हमने इसमें 4 डेटा डाली, और दूसरा क्या किया कि भाई लास्ट को हमने नल कर दिया। ठीक है, न्यू नोड के बाद जो है वो नेक्स्ट नोड नल है। फिर हमने क्या करना है कि इसको जो करंटली ये लास्ट नोड है, ठीक है, तो इसको इसकी एड्रेस दे देनी है कि लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टू जो भी है ये वाला, और लास्ट जो है इसको ये वाला एड्रेस दे देनी है, यानी कि ये हम इसको यहाँ पे इसका नोड दे दे कि भाई अब लास्ट नोड हमारा ये है। यानी कि जब हम इसको ट्रेवर्स करें तो क्या करेगा, स्टार्ट से ट्रेवर्स करेगा, पहला नोड ये है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 पॉइंटर हमने आसानी के लिए लिए हैं कि हम जो है वो अगर लिस्ट को जो है वो एंड से करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम वापस अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, अगर क्लियर है तो हम जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे।